Hi, hello, namaste. This is Shekhar from DSM Academy. I'm back with a new video today. That is explanatory video for BRS, Bank Reconciliation Statement. In the previous video, I clearly explained you what is BRS and how to do BRS problems and what are the main points to be noted while doing the BRS problems. So those who are new to this video, so please watch my video for BRS explanatory video, then come back to this video. Why? Because वो समझे तो ये समझ में आता. So directly problem you can't understand, sir. First the introduction part try to understand. Then this is the easiest method which I am teaching you now. So before starting the video, please like, subscribe and share this video to the people who are in need. Why? Because this video will give you good marks in your examinations. Right. And the explanatory video of BRS will be pinned in my description video. So do watch it. And now we'll start with the problem, that is BRS का simple तरीके का problem कैसा solve किया जाता. Right. So now first in this what you call video, the first question what I give is, I already told you in the previous video that whenever passbook as per cash book, the balance as per cash book देता है, so you have to find out balance as per passbook. So when passbook is the main balance, you have to find out cash book. This I told you, and also additional point also I told you in that video. So here now look here beta, cash book में debit side में receipts, deposits, customer deposits. So cash book में debit side में receipts आएंगे, deposits आएंगे. यानी for example today I am depositing 1000 rupees. Today I am depositing 1000 rupees in bank. I will note here in the cash book 1000 rupees मैं जमा करने वाला हूँ. अगर किसी को चेक लिख के दे रहे अपन तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देते चेक बिन इश्यूड, राइट. सो एंड पेमेंट्स एंड चार्जेस इन द क्रेडिट साइड, एंड उसका ऑपोजिट रहेगा पासबुक. क्रेडिट यानी प्लस, डेबिट यानी माइनस. यानी ये अपना अकाउंट है, अपने को जब पैसा आता तो क्रेडिट बोल के मैसेज आता ना, तो वैसा ही जब चेक डिपॉजिट कर दिए तो जब क्लियर हो जाता तो यहाँ क्रेडिट साइड में आता इफेक्ट. डिपॉजिट्स क्लियर, डिपॉजिट्स कलेक्टेड, राइट. कस्टमर एक बार डायरेक्टली अपने अकाउंट में डाल देता पैसे, तब कस्टमर डिपॉजिट्स कलेक्टेड, राइट. रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड में फॉर एग्जांपल अपन किसी को चेक लिख के दिए, राइट. जब अपने अकाउंट से पैसा कटता तो डेबिट बैलेंस होता, तो इशूड पेड, राइट. चेक इशू दिए सो पेमेंट हो गया, एंड पेमेंट्स एंड चार्जेस विल बी गिवन इन डेबिट साइड ऑफ पासबुक. सो नाउ let's start with the problem. The question will appear on the screen, and I am reading the question here. Prepare a bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st December 2022. So he is giving the date. This is very important. 31st December 2022 डेट दे दिया, यानी दिसंबर के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो गए वो देखना है, जो नहीं हुए वो देखना है. जो नहीं हुए वो अपने को सब में इफेक्ट करता कैसा भी. समझ में आया? चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद इन ब्रैकेट डेबिट बोल के दिया, यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस. देखिए कैश बुक डेबिट मींस प्लस, यानी ये फेवरेबल प्रॉब्लम है, ऐसा आइडेंटिफाई करते. तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 1,98,000. बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, यानी चार्जेस जो है बैंक में नोट कर दिए, यानी बैंक चार्जेस डेबिट हो गया बैंक में, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. 34,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटास वाया RTGS on 31st December 2022 but not recorded in the cash book. तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन कलेक्ट कर लिया, लेकिन कैश बुक में इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, check received and deposited but dishonored, entry for dishonor not made in the cash book, instruction for payment given to the bank on 31st December 2022 but the same affected by the bank on 1st January 2023, 4,000 rupees. चलो ये सम सॉल्व करेंगे अपन बहुत आसान तरीके में, अच्छे से देखो वीडियो, राइट सर. So first of all in the given question it is mentioned bank balance as per cash book. सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? कैश बुक है, तो कौन सा बुक फाइंड आउट करना है? पासबुक फाइंड आउट करना है. चलो आई एम राइटिंग हियर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन. डायरेक्टली राइट इन द सेकेंड कॉलम 1,98,000
So maybe it's not visible for you. So there are 1,98,000. Right. Next is bank charges debited by the bank but not recorded in the cash book. यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है कि भाई राइट. सो एड आइटम्स लेस आइटम्स जो भी है देखेंगे. देखिए आपको समझने का तरीका है. थोड़े कॉलेजेस में ऐसा ऐसा बताते हैं, चलो भाई डेबिट का ज्यादा हो गया, क्रेडिट ज्यादा हो गया. थोड़े कॉलेजेस में डिफरेंट वे में बताते हैं. यहाँ पे आसान है, सीधी सी बात है. जो बैलेंस दिया फर्स्ट लिखना है, ऐड बोल के लिख के गैप दे दो, थोड़े एंट्रीज रहते, लेस गैप दे दो. अब अपने को देखना है कैश बुक दिया तो सिर्फ पासबुक को देखना है. When the starting balance is cash book, you have to look only in passbook. Don't look in cash book. Passbook में देखना है वो कंसर्न ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या था पासबुक के अंदर. That is very important sir while doing BRS. बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया, जो कौन सा बुक देखना, पासबुक में देखना, एंड वहां भी इफेक्टिव देखना. समझ में आया? चलो यहाँ फर्स्ट एंट्री है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, यानी फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक. अपने को कौन सा बुक देखना है, या कैश बुक है तो पासबुक देखना है. तो पासबुक में उन्हें क्या बोला, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, यानी बैंक वाला क्या करा, डेबिट कर लिया, यानी पासबुक में डेबिट में चार्जेस आ गए बोल के बोल रहा. तो चार्जेस है ना, चार्जेस आ गए तो क्या हो रहा. अब देखो आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे पासबुक क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस. तो ही सेइंग दैट 34,000 इज चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बट उसका इंफॉर्मेशन कैश बुक में नहीं है. तो अपने को देखना सिर्फ पासबुक है. तो पासबुक में डेबिटेड बोला, डेबिटेड यानी डेबिट साइड में आ गया, कितना आ गया, 34,000 आ गया. जो पासबुक क्या हो गया, माइनस हो गया. कितना माइनस हुआ, 34,000. पासबुक कम हो गया बैलेंस यहाँ पे. राइट. सो कम हो गया जब क्या करना, कम कर देना सब. राइट. डायरेक्टली एंट्री विल राइट हियर बैंक चार्जेस debited by bank but not recorded in cash book. जो क्वेश्चन है वो एज इट इज लिख लो, होना है तो. राइट. अब ये अमाउंट मैं ये कॉलम में लिख रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम में माइनस एंट्रीज है तो 34,000. राइट बेटा. नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट रिसीव्ड फ्रॉम डेटार्स through RTGS, there is online transfer on 31st December 2022, not recorded in cash book. यानी कोई डेटार अपने को पैसा देना है. क्रेडिटार किसको बोलते हैं, जब अपन क्रेडिट सेल्स करते हैं तो वहां से आने के पैसे रहते. कोई डेटार यानी कोई कस्टमर अपना क्या करा, डायरेक्ट अकाउंट में डाल दिया. मैं क्लियर कट मेंशन कर दिया कि भाई कस्टमर जो डिपॉजिट करा ये कलेक्ट हो जाता. राइट. सो यहाँ पे उन्हें बता रहा है कि भाई कस्टमर से पैसा आ गया, यानी डेटार से पैसा आ गया, वो कलेक्ट हो गया. राइट. पासबुक में, बट नो इन्फॉर्मेशन इज पास्ड इन कैश बुक. कैश बुक में मतलब नहीं है, तो अपने को उससे भी मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ पासबुक में देखना है. एंड पासबुक में पैसा आ गया. कितना पैसा आ गया बेटा, 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपए अकाउंट में डेटार यानी कस्टमर पे डिपॉजिट कर दिया. कस्टमर डिपॉजिटेड पासबुक में किस तरफ आता, प्लस. राइट. सो आ गया 1 लाख रुपए. अंडरस्टूड सर. नाउ दिस 1 लाख रुपए what we have to do, ऐड हो गया ना, तो ऐड कॉलम में लिखेंगे अपन रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटार बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं CB बोल के, कैश बुक. ओके. सो कितना पैसा है, 1 लाख रुपए. डायरेक्टली प्लस कॉलम में लिख दे रहा हूं मैं, प्लस अमाउंट्स पूरे डायरेक्ट लिख देना सकते हैं अपन. Next is received, right, check issued but not presented for payment 45,000. चेक क्या करे अपन, इशू कर दिए लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ. अपने को कौन से बुक में देखना है बेटा, पासबुक में देखना है, क्योंकि कैश बुक बैलेंस दिया तो पासबुक में देखना है ना. तो पासबुक में क्या बोल रहा हूँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू हो गया लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ. तो इशू का पेमेंट हुआ तो कहां पे आता, डेबिट में आता है कि नहीं. पेमेंट हुआ तो किस तरफ आता, डेबिट में. इशू पेड
ये पेमेंट नहीं हुआ तो क्या होता, वो क्रेडिट हो जाता, होता ही ना। पेमेंट हो गया माइनस हो गया, अगर नहीं हुआ तो प्लस हो गया जैसा, राइट, क्रेडिट। सो अब सीधी सी बात, ज्यादा नहीं सोचना। बीआरएस में अगर तुम उससे हटके सोचेंगे ना, डेप्थ में सोचेंगे, तो नहीं आता बीआरएस। तो सिर्फ वो ट्रांजैक्शन तक ही सोचना है। यहाँ पे क्या है, चेक इशूड बट नॉट पेड। यहाँ पे चेक इशू हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट हो गया तो माइनस होता था, पेमेंट नहीं हुआ तो क्या हो गया, प्लस। सो नाउ यू हैव टू ऐड दिस, check issued but not paid, right? How much is the amount? 45,000, right sir. Next is check deposited but not cleared. check deposit हो गया but clear नहीं हुआ, he's saying, राइट। सो चेक डिपॉजिट अपने को पासबुक में देखना है, डिपॉजिट हो गया ना, राइट। सो डिपॉजिट होके क्लियर हो गया तो किस तरफ आता, देखो बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर बोल रहा हूं, यानी पासबुक में पैसा आ गया तो अपने को क्रेडिट बोल के मैसेज आता ना। तो यहाँ पे अभी डिपॉजिट अपने आए नहीं अकाउंट में, तो आए नहीं का मतलब क्या है, अपना बैलेंस माइनस में है ना, तो आ गया तो प्लस हो जाता था, तो कलेक्ट नहीं हुआ बोले क्या मतलब क्या है, माइनस, यानी डेबिट हो जाता। सो नाउ यू हैव टू डिडक्ट दिस, ओके। सो चेक डिपॉजिटेड but not cleared. What is the amount? 25,000. Okay, right. Next is check received and deposited but dishonored. चेक रिसीव कर लिए अपन एंड बैंक में जमा भी कर दिए, लेकिन चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। एंट्री फॉर डिसऑनर नॉट मेड इन द कैश बुक। एंट्री फॉर डिसऑनर कैश बुक में नहीं लिखे गए थे 5,000 का। देखिए यहाँ पे चेक क्या करे अपन, रिसीव कर लिए, डिपॉजिट भी कर दिए एंड वो डिसऑनर भी हो गया। डिसऑनर का मतलब हो गया पेमेंट नहीं आया, तो पेमेंट आ गया तो पैसे आ गए तो क्या होता, ऐड होता, नहीं आया तो क्या होता, माइनस। सो अपने को करना क्या है, ये एंट्री वी हैव टू माइनस चेक रिसीव्ड, deposited and dishonored, no entry in cash book. What is the amount? 5,000 rupees, right. Next, instruction for payment given to the bank on 31st December 2022. So बैंक को अपन इंस्ट्रक्शन दिए, कब दिए, 31st December 2022 के दिन दिए, बट द सेम अफेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1st January 2023। अपन बैंक को बोले कि भाई ये पेमेंट कर दो 31st दिसंबर के दिन, पेमेंट कर दो बोल के बैंक को बोल दिए, अकाउंट में मेरे पैसे है तुम ये पेमेंट कर दो बोले, लेकिन बैंक वाला क्या करा, उस दिन नहीं करा जिस दिन अपन करो बोले, उसने नेक्स्ट दिन करा 1st January के दिन। सो मैं इससे पहले मेरे वीडियो में बताया था, जो डेट के अंदर हो जाते अपने को इफेक्ट ही नहीं करता हो, उसे मतलब नहीं है अपने को। जो आफ्टर डेट होता एंट्री, दैट विल बी अफेक्टेड। सो यहाँ पे 31st दिसंबर को वी आर क्लोजिंग, बट पैसे कब, पेमेंट कब हो रहा, जनवरी 1st को तुम्हारे अकाउंट से कट हो रहा, अपन देख रहे कब, 31st दिसंबर के दिन। तब तक पेमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ ना। अगर पेमेंट हो गया तो किस तरफ आता था, पासबुक में माइनस, नहीं हुआ का मतलब क्या है, प्लस। समझ में आया बेटा, 31st दिसंबर के अंदर ही देखना है पेमेंट हुआ नहीं हुआ। पेमेंट 31st दिसंबर में नहीं हुआ, जनवरी में हुआ, तो डेट के अंदर अगर पेमेंट हुआ तो माइनस होता था, लेकिन अभी नहीं हुआ ना पेमेंट, क्या होता, प्लस। सो इंस्ट्रक्शन टू बैंक for payment was made on 1st January 2023। ओके, 4,000 अपने अकाउंट से पैसे पे कर दो रे बोल के उस दिन बोले, तो उस दिन नहीं करा, नेक्स्ट दिन करा। अपन उस दिन देख रहे थे, हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना,
तो अपने अकाउंट से पैसे कट नहीं कटे ना, तो ऐड ही होते ना, इसलिए ऐड करा। चलो विल टोटल दिस नाउ। अपने को करना क्या है बोले तो टोटलिंग 1,98,000 प्लस 1 लाख प्लस 45,000 प्लस 4,000, 3,47,000 is the total here. 3,47,000. Understood? Now इसका टोटल करेंगे माइनस बैलेंस का। ओके, सो 34,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, 64,000 है, राइट। सो अब ये 64,000 मैं आउटर कॉलम में डाल दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये माइनस बैलेंस का है, ये टोटल ऐड कॉलम में से ये माइनस करना है। सो 3,47,000 माइनस 64,000, 3,47,000 माइनस 64, 2,83,000, 2,83,000। समझ में आ गया बेटा? So this is called as bank balance as per पासबुक। ये है फेवरेबल सम। सो आपको एग्जाम में एक फेवरेबल सम आएगा, एक ओवरड्राफ्ट आएगा। ओके बेटा, सो मैं अब करा क्या, कैश बुक ओपनिंग बैलेंस लेके पासबुक सम का कराया था आपको, राइट। सो अगर पासबुक ओपनिंग दिया, कैश बुक फाइंड आउट करना है, तो पासबुक यहाँ पे लिख देना बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सो सिर्फ आपको कैश बुक देखना है, राइट। प्लस हो रहा तो प्लस करना, माइनस हो रहा तो माइनस कर लेना, बस। एंड ओवरड्राफ्ट में क्या करते हैं, I'll show you in the next video while doing overdraft. So do watch more videos. Every video is very important for you. जो भी फुल मार्क्स स्कोर करना चाह रहे, मैं ऑलरेडी बोला मेरे पहले वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, अगर इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन अकाउंट्स, आई एम right there here to help you out. And जिसको पास होना है 100% पास हो जाएंगे। Please like, subscribe and share this video to all your friends. Thank you. Bye bye.